اسلام آباد سے آکسفورڈ لیے چلتے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈاکٹر عدیل ملک نے جوائن کیا ہے. ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ آپ کو بڑے بڑے بین الاقوامی معاملات میں سے سب سے اہم معاملہ کون سا ایسا لگتا ہے جس سے دنیا بھی متاثر ہوگی اور پاکستان بھی؟ جی میرے خیال میں جو پچھلے سال ہمیں پوری دنیا میں ایک خاص طرح کا لیجیٹیمیسی کرائسس نظر آتا ہے، جو اعتماد ہے ریاست اور اس کے عوام کے درمیان، وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو ہے جو فلسطین سے متعلق ہے کہ جس میں مشرق وسطیٰ میں ایک لحاظ سے جو بھی پالیسی تھی ویسٹ کی، وہ بہت اس میں بنیادی تبدیلیاں نظر میں آ رہی ہیں. اور جو اسرائیل کے متعلق جو ایک نیریٹو تھا، اس کو بہت بڑا یورپ میں، امریکہ میں سیٹ بیک ملا ہے. طاقت کا استعمال جو ہے مشرق وسطیٰ میں، خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے سے، وہ ایک لیجیٹیمیسی اسٹیٹ کی، خاص طور پہ جو مغربی ریاستوں کا یوکرین کے اوپر ایک سٹانس تھا خاص طرح کا، جو اس میں ہیومن رائٹس کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. وہ ہیومن رائٹس ایجنڈا جو ویسٹ کا ہے، اس کو کافی زیادہ مسئلہ درپیش ہوا. دوسرا بڑا جو ایلیمنٹ ہے لیجیٹیمیسی کرائسس کا، وہ یہ کہ ریاست کا جو اور سٹیزنز کا جو آپس میں اعتماد ہے، وہ کم ہو رہا ہے، جس سے ایک طرح کا جمہوریت کے اوپر جو فیتھ ہے لوگوں کا، خاص طور پر نوجوان لوگوں کا یا عام لوگوں کا اشرافیہ کے متعلق، وہ بدل رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کا جو ظہور ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. تو ایک تو یہ لیجیٹیمیسی کرائسس ہے. دوسرا جو میرے خیال میں بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو مشرق وسطیٰ میں جس طریقے سے عراق وار کے بعد خاص طور پہ ریاست جو ہے کمزور ہوئی ہے، عراق میں، لیبیا میں، اور اب جس طریقے سے سیریا میں ریاست کافی کمزور ہوئی ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جو سیرین ملٹری تھی وہ تقریباً ڈسبینڈ ہو گئی آن دا گراؤنڈ. تو آپ کو نظر آیا کہ سیرین ملٹری کے لیے کوئی کامن پرپز نہیں تھا. تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی مسلمان ریاستیں جن کے پاس کوئی ملٹری کیپیسٹی ہے، اس میں اب پاکستان اور ٹرکی رہ گیا. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیلاب ہے مشرق وسطیٰ سے، وہ پاکستان کی طرف فیوچر میں آ سکتا ہے. ہمارے لیے بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو ملٹری کیپیسٹی ہے اس کے اوپر کل بہت بڑا اثر نہ ہو پائے، جس طریقے سے مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں تھا. بڑا آپ نے زبردست اینگل دیا ہے. میرا خیال تھا کہ جب میں نے آپ سے سوال کیا تو میرا خیال تھا کہ آپ بات کریں گے معیشت کی، کہ دنیا بھر کے اندر جو معاشی معاملات ہیں، ٹیرفس آر گوئنگ اپ، ٹریڈ وارز کا ذکر کر رہے ہیں، جو جاب مارکیٹس ہیں وہ شرنک کر رہی ہیں، کمپیٹیٹو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، جو ہیومن انٹینسو انڈسٹریز ہیں وہ اب ٹیکنالوجی انٹینسو جا رہی ہیں، تو لے آفس ہوں گے. لیکن آپ نے یہ ریاست اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے اس کا ذکر کیا. اب اکنامک سفیر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو معاشی معاملات ہیں، آپ آکسفورڈ میں بیٹھے ہیں، سکل سیٹس کس قسم کے چاہیے؟ لوگ دھڑا دھڑ باہر جا رہے ہیں، وہاں پر مارکیٹس کی ڈیمانڈ کچھ اور قسم کی ہے، تو کیا یہ بھی چیلنج ہے ہمارے لیے یا نہیں؟ دیکھیں، لانگ رن میں، یعنی جو لمبے عرصے میں یا میڈیم ٹرم میں، یہ ایک پوری جو گلوبل ساؤتھ کے غریب ممالک ہیں ان سب کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. میرے خیال میں جو آپ کو کرائسس آف کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری کا ایک بحران نظر آ رہا ہے، جو عالمی سطح پر اس کی دو بڑے مظہر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو شرح نمو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے بہت سارے مغربی ممالک میں، لیکن غریب ممالک پہ بھی اس کا اثر ہے. اور انفلیشن جو ہے خاص طور پہ کووڈ کے بعد جو افراط زر ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور جو غریب ممالک ہیں، افریقہ میں، گلوبل ساؤتھ میں، پاکستان میں، وہاں پہ بھی جو ڈیٹ ہے یعنی قرض کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ہم ایک ایسے ایرا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ ڈی گلوبلائزیشن ہے. یعنی جو پہلے ایک 90 اور 2000 کی دہائی میں جو خاص طرح کا ایک بیانیہ تھا کہ آپ عالمی تجارت کا حصہ بنیں، ریاست کا معیشت میں رول کم ہو تو ترقی کریں گے، وہ اب وہاں سے ریورسل ہو رہا ہے. ہر ریاست جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کیسے زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کو، اپنی مینوفیکچرنگ کو گرو کرنے کے لیے. اور جو گلوبلائزیشن ہے، یہ جو عالمی تجارت کے لیے جو خاص طرح کی پالیسیز تھیں، اس میں اب گلوبل سے زیادہ ریجنل، یعنی جو ٹھیک. آپ کے آس پاس ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک اہم
इशू बन गया। जहां तक ऑटोमेशन का ताल्लुक है, वो तो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है आने वाले सालों में। उसमें गरीब ममालिक में भी इन्फ्लुएंस होगा, जो पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। आपने दुरुस्त कहा कि जो इलाकाई मामलात हैं वो सर चढ़ कर बोलेंगे आने वाले साल और सालों में। हमने अपने इलाकाई मामलात को कैसे तय करना है, अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान के साथ मामलात हो, मशरक़ वस्ता भी हमारे इलाके का ही हिस्सा लगता है जहाँ पर बैठे हुए। क्विकली जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं जिसके साथ नथी हैं हमारी ज़राअत, उसके साथ नथी है, जिसके साथ नेचुरल कैलामिटीज़ नथी हैं, माइग्रेशन जिसके साथ नथी है, उसको आप कैसे रेट करते हैं? क्या उसका भी असर होगा पाकिस्तान पर? बहुत ज़्यादा असर होगा। जिस तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ सैलाब आए, तो उसने हमें बताया कि अब माहौलियाती जो असरात हैं वो सिर्फ बड़े ममालिक में, मगरबी ममालिक का इशू नहीं है, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है अंग्रेजी में कि पाकिस्तान जो है वो एक ग्राउंड ज़ीरो है क्लाइमेट चेंज के लिए। यानी बहुत सारे जो माहौलियाती असरात हैं वो पाकिस्तान उसका के ऊपर डायरेक्ट असर होगा। एक तो ख़ास तौर पे जो सैलाब है उसके हम प्रोन हैं, फिर हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हमारा जो फॉरेस्ट कवर है दुनिया में 31% होता है, हमारा 5% से भी कम है। और फिर जिस तरीके से बेहंगम तरीके से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, इससे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेन आएगा। तो अब जो माहौलियाती तब्दीलियों का असर है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपकी बस वहमो गुमान में हो, वो आपके सामने बिल्कुल सामने एक बड़े मसले के तौर पर खड़ी है। और हमें अपना जो डेवलपमेंट मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने उसका जो 5 E's का जिक्र किया, उसमें जो एनर्जी है और एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट अब एक सिर्फ वो कंसर्न नहीं जो आप एक पॉलिसी डोनर्स के डॉक्यूमेंट्स में डाल दें कि सब लोग माहौल का जिक्र कर रहे हैं, माहौलियात का, तो हम भी जिक्र कर दें। हमारे लिए उसका बहुत गहरा और डायरेक्ट असर होगा। चुनांचे जो भी हम डेवलपमेंट पॉलिसी बनाते हैं उसमें एनवायरमेंटल असेसमेंट करनी पड़ेगी और दूर रस पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी इस मामले में। आप लीव इट देयर डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, कमरुद्दीन कायरा साहब मौजूद हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं बातचीत की जो हमारे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम तरीन चीज़ ऑक्सीजन है। पहले भी थी लेकिन 2025 के अंदर तो इस ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत है। राना साहब, जुडिशल कमीशन में तो कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए ना? देखिए, इसका मैं जवाब यहाँ पे तो देने की पोजीशन में नहीं हूँ, अमूमी राय अपनी दे देना। लेकिन ज़ाती तौर पे या अमूमी राय के तौर पे जुडिशल कमीशन जो है ये हमें बताएं कि किसी फौजदारी केस में जुडिशल कमीशन जो है वो किस लॉ और किस कानून के तहत जो है वो बन सकता है। एक क्राइम कमिट होता है, कोई कत्ल हो, डकैती हो, किसी के घर को आग लगाई गई हो, उसके ऊपर FIR जो दर्ज होती है, अगर उस FIR के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का कमीशन बने और वो उसका फ़ैसला करे कि कौन गुनाहगार कौन बेगुनाह है, तो उसके बाद फिर उसका ट्रायल कहाँ पे होगा? फैक्चुअल डिटरमिन करते हैं क्या हुआ, क्या हुआ तो वो तो ऑफेंस कमिट हुआ ना, वो तो पता सब वो तो पता है। बात बड़ी देखें, ये मामला जो हैं, ये जब इनकी जो मुअज़्ज़ज़ मुज़ाकराती टीम है, जब वो मामला हमारे सामने रखेगी, उसका हम बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक इनको जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त जिन्होंने बात की उसका जवाब आप ये दे रहे हैं। और जो मुमकिन हुआ इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो करेंगे, और जो नहीं है हम इनसे तवक्को करेंगे कि ये उसको तस्लीम करें। लेकिन आप प्रोसीजर में ना बात को फंसाएं। वो फौजदारी के मुकदमात की आप कैसे तहकीक कर सकते हैं, वो तो सजाएं हो रही हैं, लेकिन वाकये को आप डिटरमिन तो कायरा साहब कर सकते हैं ना कि ब्लू एरिया में सुन लेना 26 तारीख को क्या हुआ। कोई क्रिमिनल मिसाल के तौर पे रॉबरी है, मर्डर है, किसी के घर को आग लगाई गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कमीशन ये तय करेगा कि ये जिन मुलजमों को FIR में नामजद या चलान किया गया है ये गुनाहगार हैं, ये बेगुनाह है? इज़ इट पॉसिबल? क्या आपका जो मौजूदा कानून या जो प्रोसीजर्स हैं वो इस बात का जवाब देते हैं, इसकी इजाज़त देते हैं? देखिए, कमीशन बनते हैं किसी फैक्चुअल पोजीशन के ऊपर, वो ये हमें बताएं कि ये किस पोजीशन के ऊपर बनाना चाहते हैं। चलो साहब, एक तो ये है कि
इलेक्शन के ऊपर एतराज़ था। ठीक। इलेक्शन कमीशन ने जो भी रिजल्ट दिए उसको उन्होंने नहीं माना, कुछ को माना कुछ को नहीं माना। KPK में ठीक है, बाकी जगहों पे नहीं ठीक। अच्छा, उसके ऊपर उसका फर्स्ट कोर्ट क्या थी, फर्स्ट उसका जो अपील होनी थी वो होनी थी, आपने ट्रिब्यूनल बनाए। ट्रिब्यूनल के ऊपर एक बड़ा लंबा पहले लिटिगेशन हुई, तो लिटिगेशन भी PTI की तरफ से हुई, गवर्नमेंट ने बना दिए। इनका एतराज़ ये था कि रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल कमीशन जो बनेंगे वो गवर्नमेंट की मर्जी के फैसले करें। ये एक जनरल ये अजम्पशन थी। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर ऐसा होता कि ये कमीशन को चलने देते, उन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाते और जो फैसला होता अल्टीमेटली वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जाने थे ना। अगर वहाँ से नीचे को डंडी बजती तो ऊपर जाके तो पता चल जाता। सो आज तक वो फैसले हो चुके होते। अगर वो डिले हुए हैं तो उस डिले का भी जिम्मेदारी देखनी चाहिए ना कि कहाँ से हुई, और नुकसान भी इनको हुआ। नुकसान भी इनको हुआ। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो उस वक्त इनको फेवर कर रही थी, बज़ाहिर नज़र ये आ रहा था। और अगर नीचे से राणा साहब और हम मिलके कोई जो ट्रिब्यूनल थे उनके साथ कोई गलती करा लेते तो ऊपर जाके तो ठीक हो जाती। अपील हाई कोर्ट में जानी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट थी। तो मामला बहुत सारे फोरम्स थे, उनको जानबूझ के अवॉइड किया गया और इतना उस पर डिले हुआ कि अब मुतालबा यह है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन पे राणा साहब की बात दुरुस्त है। यहाँ 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, अब फैसला ये होगा कि जी क्या क्या हुआ। पहले तो फिर साथ ये भी फैसला होगा ना कि जब कानून तोड़ने के लिए खान साहब ने फैसला किया कि जाके संजानी में जलसा करो, तो फिर किसने कहा था कि यहाँ आगे करना है। अगर मुझे एक छोटी सी गुजारिश करें दे, बड़े मामलात में ये जो इनकी तरफ से बड़े ही संजीदा इल्ज़ामात लगते हैं, ये कत्लेआम की बात करते हैं, ये डायरेक्ट फायरिंग की बात करते हैं, ये हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, उसमें लोग जो हैं वो इतने थे कि डॉक्टर्स जो है ना बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कर रहे थे, संजीदा इल्ज़ामात है। इसको तो वो कर सकता है कमीशन के नहीं। तलत साहब, सवाल ये है कि उस मामले को सब्सटेंशिएट तो होना चाहिए ना कहीं। आप लोग तो न्यूट्रल है ना, मीडिया तो न्यूट्रल है ना। हम तो बिल्कुल परे बैठे, न्यूट्रल है ना। आपके पास सारी फुटेजेस मौजूद हैं, आपके रिपोर्टर्स मौजूद थे, आप सब कुछ जानते हैं। यार एक इल्जामात की बारिश है। 12:15 बजे वैसे मैं इस जगह से गया था उस रात। दूसरी बात यह है कि वहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज साहब बैठ के ये फैसला कर देते हैं कमीशन कि तलत हुसैन और कमर जमान दोनों उस जगह पे थे, आग लगा रहे थे और उन्होंने, हमने देखा ये फैसला है, उसके बाद ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन तो फारग हो गई ना। फिर वो तो नहीं हो सकता, फिर वो तो हतमी तौर पे हम दोनों सवार हो जाएंगे। तो सेनेटर साहब, लेकिन फिर जस्टिस का तकाजा पूरा नहीं, लेकिन ये बात भी इनका हक है, करें। उसका गवर्नमेंट जवाब देगी, लेकिन जज्बा यही हो कि जो हो सकता है वो किया जाए। तो दूसरी, इसके साथ 2 शर्तें इनको भी पूरी करनी है, जो शराइत नहीं है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, तवक्कुआत है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि एक माहौल ऐसा बनाया जाए। आप PTI के सोशल मीडिया को अपना जो इस वक्त एक बम्बार्डमेंट है जिसको हम नेगेटिव कह रहे हैं, मैं उसको ज़्यादा तल्ख नहीं कहता, उसको रोकना होगा, उसको कम से कम मुनासिब अल्फाज में लेके आना होगा एक्चुअल मीडिया और इसको रोक सकते हैं। इसको इमरान खान साहब रोक सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी जो कुछ हो रहा है, अगर वो नहीं रुकेगा तो ये कंडूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा। KP के चीफ मिनिस्टर को तो आपको तीसरी आज भी उन्होंने जो कुछ कहा है वो कमाल है। और एक सिविल नाफरमानी, आप सोचे तो सही ना कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं, सिविल नाफरमानी तो बगावत का आगाज है। यू आर नॉट अटैकिंग द गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं कि हम स्टेट को रेवेन्यू नहीं देंगे, हम बैंकों को पैसे नहीं देंगे, हम यूटिलिटी बिल्स नहीं देंगे। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से आगाज करके फिर आप बंदूक उठाते हैं। सिविल नाफरमानी आप गैर मुल्की अकाओं के खिलाफ करते थे, अपने इस सारे नॉमेनक्लेचर को तो ठीक करें।